پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریاب پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو خامس کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دفتن وہ چونک گئی۔ باہر سے دروازے پر ٹکریں ماری جا رہی تھی۔ اگر دروازہ کمزور ہوتا تو اب تک ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن یہ ساگوان کی لکڑی کا دروازہ تھا جو بہت بھاری اور بہت مضبوط تھا، اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ لیکن دریاب کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر پولیس والے پچھلی طرف آ گئے تو کھڑکیوں سے انہیں نہایت آسانی سے گولیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ باہر سے ٹکروں کے ساتھ ساتھ اب خامس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر پولیس والوں سے کہہ رہا تھا، ارے کم بختو، پچھلی طرف جاؤ، وہ لوگ کھڑکی سے بھاگ جائیں گے۔ دریاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب موت ان سے چند قدم کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ اگر پولیس والے دوسری طرف پہنچ گئے تو ان تینوں میں سے کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ دروازے پر اب بھی ٹکریں ماری جا رہی تھی۔ دریاب کندن کے قریب بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ زرمک کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بڑی تیزی سے دیوار کے قریب فرش کو ٹٹول رہا تھا۔ پھر دفتن کندن کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ دیوار شک ہو رہی تھی۔ زرمک تیزی سے کندن کے قریب آ گیا اور وہ اسے کندھے پر اٹھا کر خلا میں داخل ہو گیا۔ اندر کا میگنیزیم تلاش کرنے میں اسے 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ دیوار کی خلا کا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور پھر دونوں حصے آپس میں مل گئے تھے۔ سرنگ میں گہری تاریکی تھی۔ وہ دیوار ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہ حویلی میں کسی اور سرنگ سے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا تھیلا سرنگ کے اس دہانے کے قریب چھوڑ دیا تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی ٹارچیں بھی نہ جانے کہاں رہ گئی تھی اور اب تاریکی میں چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ دفتن دریاب کو یاد آ گیا کہ جب وہ شہر سے روانہ ہوئی تھی تو اس نے دوسری چیزوں کے علاوہ سوٹ کیس میں ایک پینسل ٹارچ بھی رکھی تھی، اور اس خیال کے آتے ہی وہ فوراً زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے سوٹ کیس سامنے رکھ لیا اور ٹٹول کر سیفٹی کیس ہٹا کر اس کا ڈھکنا اٹھا دیا اور اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگی، اور اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ 2 منٹ کی کوشش کے بعد ٹارچ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچ کی روشنی خاصی تیز تھی۔ گہری تاریکی میں اچانک روشنی ہو جانے سے ایک لمحے کو ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس نے سوٹ کیس بند کر کے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹارچ مجھے دے دو اور تم میرے پیچھے آؤ، زرمک نے کہا۔ اس تنگ سی سرنگ میں زرمک کندن کو کندھے پر اٹھائے بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ 2-3 سرنگیں گھومنے کے بعد وہ تقریباً 7 منٹ بعد دہانے کے قریب اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کا تھیلا بھی رکھا ہوا تھا۔ زرمک نے کندن کو کندھے سے اتار دیا۔ کندن سرنگ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر دردی پھیل رہی تھی۔ اس نے زخمی ٹانگ کو آگے کو پھیلا رکھی تھی۔ گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی اور گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم سے خون رس رہا تھا۔ شلوار کا پائنچہ تک کا حصہ خون سے تر ہو رہا تھا۔ زرمک نے وہاں پڑے ہوئے تھیلے میں سے ایک چھوٹی سی گول ڈبیا نکالی اور اس میں مرہم بھرا ہوا تھا۔ دریاب نے کندن کی شلوار کا پائنچہ اوپر تک ادھیر دیا اور پہلے اپنے دوپٹے سے پلو سے زخم صاف کیا اور پھر زخم میں مرہم بھر کر دوپٹے کو لپیٹ کر پٹی کی طرح باندھ دیا۔ زخم پر مرہم رکھتے ہی کندن کو یوں محسوس ہوا جیسے برف کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہو، اور اس کی پنڈلی میں برف جیسی ٹھنڈک کی ایک لہر سی دوڑتی چلی گئی اور درد حیرت انگیز طور پر کافور ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ سرنگ کے دہانے سے نکل کر جھاڑیوں میں آ گئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھوڑوں کے پاس آ گئے۔ اب ان کے پاس صرف 2 گھوڑے رہ گئے تھے۔ تیسرے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس کی لاش بھی قریب ہی پڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں سفید گھوڑے پر بیٹھ جائیں، میں اپنے والے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہوں، زرمک نے کہا۔ اس نے پہلے کندن کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر سہارا دے کر دریاب کو بھی گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ کندن پیچھے تھی اور دریاب آگے۔ دریاب نے زرمک کا تھیلا گلے میں لٹکا لیا اور اس کا سوٹ کیس زرمک نے لے لیا تھا۔
दरियाब ने घोड़े की लगामें थाम ली। कुंदन ने कदरे आगे झुककर उसे दोनों बाहों की लपेट में ले लिया। जरमक भी घोड़े पर बैठ चुका था और उन्होंने अभी घोड़ों का रुख मोड़ा ही था कि सन्नाटे में एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो रहे, गोली चलाओ, शूट कर दो इन्हें। और बच्चे की तरह चीखती हुई ये आवाज़ खामस की थी। दरियाब का दिल उछलकर हल्क में आ गया। जरमक ने मुड़कर देखा। हवेली की ऊंची फसील पर खामस और दो पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों के हाथ में राइफलें थी। जरमक ने गर्दन मोड़ी ही थी कि फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। जरमक किसी कदर खुली जगह पर था और ऊपर से चलाई जाने वाली 2-3 गोलियां जरमक के घोड़े की पिछली टांगों पर लगी। घोड़ा हिनहनाता हुआ बुरी तरह उछला और फिर गिर गया। जरमक भी घोड़े से गिरकर कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। यह गनीमत था कि उसका पैर रकाब में नहीं फंसा था, वरना वो घोड़े के नीचे दब जाता। और उसने बड़ी फुर्ती से उठकर करीब पड़ा हुआ दरियाब का सूटकेस उठाया और एक दरख्त के पीछे छलांग लगा दी। दरियाब, जरमक की आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं थी। घोड़े को भगाओ, कुंदन तुम्हें रास्ता बताती रहेगी। खंडर वाला तय खाने से मेरी बहन खुशनुमा को साथ लेकर बस्ती में चली जाओ। और कुंदन, राजू से कहना कि वो तुम लोगों को अपने यके पर फैरोज़ाबाद पहुंचा दे। फैरोज़ाबाद में तुम लोग बूदी शाह के घर पर मेरा इंतज़ार करना। मेरी फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी करो दरियाब, भगाओ घोड़े को। हवेली के फसील से मुसलसल फायरिंग हो रही थी, लेकिन दरियाब का घोड़ा दरख्तों में होने की वजह से वह अभी तक फायरिंग की जिद से महफूज थी। दरियाब ने जरमक को सूट के साथ में लिए दरख्तों में एक तरफ दौड़ते देखा तो उसने भी घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा हल्की रफ्तार से दरख्तों में दौड़ने लगा। दरख्त गुंजान होने की वजह से दरियाब उसे ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ा सकती थी। उसका रुख उसी तरफ था जिस तरफ वो उस रोज़ जरमक के साथ हवेली से फरार होकर गई थी। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ हवेली से उसका फासला बढ़ता जा रहा था। फायरिंग की आवाज़ें अब भी आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ें बेतदरीज मादूम होती जा रही थीं। कुंदन ने बड़ी सख्ती से दरियाब को अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। हवेली के फसील पर खड़े पुलिस वाले अंधाधुंध दरख्तों में फायरिंग कर रहे थे। तड़पते हुए जख्मी घोड़े की 2 गोलियां और लगीं और वह हिनहनाता हुआ और भी जोर से लौटने लगा और उसकी चारों टांगें तेजी से चल रही थीं। मेरा ख्याल है कि वो लोग भाग गए, एक पुलिस वाले ने कहा, और उनमें से कम एक इन्हीं दरख्तों में कहीं छुपा हुआ है। फायरिंग करते रहो, कोई ना कोई गोली तो उसे लगेगी। खामस ने चीख कर जवाब दिया। पुलिस वाले कुछ देर तक दरख्तों में इधर उधर फायरिंग करते रहे और फिर उन्होंने राइफलें झुका लीं। कोई फ़ायदा नहीं, एक पुलिस वाले ने कहा, वो लोग फरार हो चुके हैं। गोलियां ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो नीचे चलो, खामस ने कहा और उनसे पहले दौड़ता हुआ फसील के अंदर वाली सीढ़ियां उतरने लगा। दोनों पुलिस वाले भी उसके पीछे सीढ़ियां उतरते हुए उस जगह पहुंच गए जहां उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर और 4 दूसरे पुलिस वाले खड़े थे और उनके सामने ताज़ा खुदी हुई वो खबर थी जो अभी पूरी तरह बंद नहीं की गई थी। सफ़ेद चादर नज़र आ रही थी। जाहिर है कि उस चादर में एक लिपटी हुई लाश थी, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि लाश का सर किस तरफ है और पैर किस तरफ। कैसे चुगद भर्ती कर रखे हैं तुम लोगों ने पुलिस में, खामस सब इंस्पेक्टर के सामने पहुंचकर चीखा। उसकी आवाज़ें ऐसी ही थी जैसे 12-13 साल का कोई लड़का नाराज़ होकर चीख रहा हो और उन्हें तो गलेल भी चलानी नहीं आती होगी और उनके हाथों में राइफलें थमा दी गई। क्या हुआ मिस्टर खामस? सब इंस्पेक्टर नागवारी से नज़रों से उसकी तरफ देखा। होना क्या था? खामस चीखा। शिकार उनके सामने था और ये लोग तीनों में से किसी और को भी निशाना नहीं बना सके। अगर राइफल मेरे हाथ में होती तो मैं देखता कि उनमें से एक भी कैसे बचकर जाता है। हम यहाँ शिकार खेलने नहीं आए मिस्टर खामस, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैं उन मुजरमों की बात कर रहा हूँ अफीसर, जो फरार होने में कामयाब हो गए। तुम्हारे ये निशानची सिर्फ एक घोड़े को मार गिराने में कामयाब हो सके हैं। मैं कहता हूँ कि तुम लोग अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ से निकलो और उनका पीछा करो, खामस ने चीखते हुए कहा। और उनमें 2 औरतें एक घोड़े पर हैं। एक औरत जख्मी है और वो घोड़ा भी दूसरों का बोझ उठाकर ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ सकता। और तीसरा आदमी पैदल है और वो भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। जल्दी करो, वक्त निकल गया तो उनमें से कोई भी हमारे हाथ नहीं आएगा। नहीं मिस्टर खामस, सब इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक जीप है और हमें अंदाज़ा नहीं कि वो लोग किस तरफ गए हैं, इसलिए उनका ताक़ब बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे हो तुम? खामस ने खौनख्वार नज़रों से उनकी तरफ देखा। क्या तुम कातिलों का ताक़ब करने से इनकार करोगे? जानते हो कि उसका नतीजा क्या होगा? हम में से किसी ने उन्हें कत्ल करते हुए नहीं देखा, सब इंस्पेक्टर ने कहा।
انہوں نے قتل نہیں کیا تو بھاگے کیوں تھے؟ خامس بولا، اور پھر تم نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں اس عورت کی لاش کو دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عورت کی لاش؟ سب انسپکٹر اچھل پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا مسٹر خامس کہ یہ عورت کی لاش ہے؟ حویلی میں صرف ایک عورت ہی تو تھی جو کھانا وغیرہ پکانے کے لیے یہاں رکھی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ لاش اس عورت کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ خامس نے کہا۔ اور ہم یہ لاش اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سب انسپکٹر نے کہا، اور پھر اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لاش باہر نکالو۔ نہیں، خامس نے جھپٹ کر ایک کانسٹیبل کی رائفل چھین لی۔ تم لوگ لاش کو چھونے کی بجائے میرے ساتھ حویلی سے باہر چلو گے اور ان لوگوں کو تلاش کرو گے۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی خامس، سب انسپکٹر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ رائفل واپس کر دو، ہم تمہارے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ یہاں کس کے حکم پر بھیجے گئے ہو؟ خامس نے کہا۔ رکھیل شاہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے، تمہارے افسران اعلیٰ بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو رکھیل شاہ تم سب کو الٹا ٹانگ کر کھال کھنچوا دے گا۔ اگر تم لوگ اپنی چمڑی بچانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، اس لاش کو یہیں سڑنے دو اور ان لوگوں کو تلاش کرو۔ بے صورت دیگر میں نے تمہیں تمہارے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ سب انسپکٹر کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی اور وہ اس جاگیر کے مینیجر رکھیل شاہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ خامس نے اس کے بارے میں غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ چمڑی اتروا دینے کی دھمکی سن کر سب انسپکٹر کی ساری اکڑ فوں ختم ہو گئی اور وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر نہایت فرما برداری سے خامس کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا، اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ حویلی میں تازہ کھودی ہوئی قبر میں ایک لاش پڑی تھی، ایک ایسی عورت کی لاش جسے قتل کیا گیا تھا، اور آلہ قتل بھی قبر کے قریب ہی پڑا تھا۔ سب انسپکٹر نے بڑی احتیاط سے وہ خنجر رومال میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ خامس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے خنجر روشن کے سینے میں رہنے دیا تھا، اور جس نے بھی یہ خنجر نکالا تھا دستے پر اس کی انگلیوں کے نشان ضرور آ گئے ہوں گے، اور اس طرح اسے اس بات کا خطرہ نہیں رہا تھا کہ خنجر پر اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے ہوں گے۔ خامس اس پولیس پارٹی کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں کچھ ایسے راستے تھے جن پر کار یا جیپ جیسی گاڑی چل سکتی تھی۔ جیپ کا رخ اسی طرف تھا اور جس طرف دریاب اور کندن گئی تھی، لیکن 2 گھنٹے بعد جیپ کا پٹرول ختم ہو گیا۔ پولیس والے شام تک جنگل میں بھٹکتے رہے اور انہیں رہ کر خامس پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ خامس کو کچا چبا جائیں۔ جب وہ لوگ پیدل درویش پر پہنچے تو رات بھی اپنا نصف سفر طے کر چکی تھی۔ وہ اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ ان کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ خامس واقعی کسی پر اصرار قوت کا مالک تھا اور وہی پولیس والوں کے ساتھ پورا دن اور آدھی رات تک پیدل چلتا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں تھے۔ درویش پور شہر میں داخل ہونے کے بعد پولیس والے تو پولیس اسٹیشن کی طرف چلے گئے تھے اور خامس اس علاقے میں آ گیا جسے شہر کا خوبصورت ترین حصہ کہا جا سکتا تھا۔ اونچے پہاڑ کے دامن میں اونچی اونچی ڈھلانوں پر خوبصورت کاٹیج اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ فلک بوس درخت، ڈھلانوں پر دبیز گھاس اور خرد پھولوں کے پودوں کی بہتاب، صاف ستھری اور پرسکون فضا۔ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں کوئی عام یا متوسط طبقے کا آدمی رہائش کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شہر کے امیر ترین لوگوں کا علاقہ تھا۔ ڈھلانوں پر بال کھاتی ہوئی اونچی نیچی سڑکیں اور سڑکوں سے کافی ہٹ کر درختوں میں گھرے ہوئے بنگلے۔ ہر بنگلے سے سڑک کے درمیان وسیع و عریض جگہ بنگلے ہی کی ملکیت تھی۔ ان درمیانی جگہوں پر خوبصورت لان بنے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر مناسب فاصلوں پر سٹریٹ لائٹیں تھیں۔ اس علاقے میں بجلی کا کوئی پول ایسا نہیں تھا جس پر مرکری بلب روشن نہ ہو۔ خامس مختلف سڑکوں پر چلتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایک گیٹ تھا جس کے ساتھ ہی اندر کی طرف محافظ کا کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف سڑک سے تقریباً 10 فٹ ہٹ کر خاردار تاروں کا ایک جنگلہ تھا جو اس بنگلے سے ملحقہ زمین کی حدود کا تعین کرتا تھا۔ گیٹ کے اندر بجلی کی ایک سڑک تھی اور جس کے دونوں طرف سرو کے پودوں کی قطاریں تھیں اور تقریباً 50 گز آگے بنگلہ تھا۔ خامس گیٹ کے سامنے رک گیا اور اس وقت وہ کچھ تھکن سی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر محافظ کے کیبن کی طرف جھانکا۔ کیبن میں روشنی ہو رہی تھی۔ گیٹ پر بھی دونوں طرف بلب روشن تھے اور ایک بلب کے نیچے چھوٹا سا بورڈ آویزہ تھا جس پر جلی حروف میں تحریر تھا۔
खतरनाक कुत्ते बंगले की हदूद में गश्त पर हैं, बिला इजाज़त अंदर आने से गुरेज कीजिए। खामस चंद सेकंड कैबिन की तरफ देखता रहा, फिर मुहाफ़िज़ का नाम लेकर उसे पुकारने लगा। तीसरी आवाज़ पर मुहाफ़िज़ कैबिन से बाहर आ गया और उसकी बेल्ट में उड़से हुए पिस्तौल का दस्ता साफ नजर आ रहा था। उसने खामस को देख लिया और जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया। बड़े साहब जाग रहे हैं, खामस ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि जाग रहे हैं, 15-20 मिनट पहले उनके मेहमान गए थे, मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया। मेहमान कौन थे? खामस ने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। दीपाली, मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया, और उसे तुम जानते हो, वो आमतौर पर रात यहीं बसर करती है, लेकिन आज वो जल्दी वापस चली गई। बड़े साहब उस पर नाराज़ हो रहे थे। इस वक्त बंगले में और कौन है? खामस ने पूछा। लगता था जैसे वो आगे जाने से पहले सब कुछ जान लेना चाहता हो। गोपांग साहब को किसी को लेकर आए हैं और वह मेरा ख्याल है कि दीपाली को इसीलिए रुखसत कर दिया गया है, मुहाफ़िज़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खामस चंद लम्हे अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। रवश पर उसके पैरों के नीचे दबने वाली बजरी अच्छी खासी आवाज़ पैदा कर रही थी और वह भी चंद कदम आगे बढ़ा था कि बाएं तरफ पौधों के पीछे से खौफनाक गुर्राहटें सुनाई देने लगी। वो खतरनाक कुत्ते थे। खामस ने उसकी तरफ देखा और मुतमिन अंदाज में आगे बढ़ता रहा। दोनों खतरनाक कुत्ते गुर्राते हुए उसकी तरफ लपके और उनका अंदाज बता रहा था कि वह उसे चीड़ फाड़ कर रख देंगे। लेकिन खामस के करीब पहुंचते ही हैरत अंगेज तौर पर वह रुक गए और खामस के कदमों पर लौटने लगे। खामस आगे बढ़ गया था। बंगला बहुत शानदार था। पोर्च में 2 नई कारें खड़ी थी। खामस बरामदे में आ गया। यहाँ मरकरी ट्यूबलाइट रोशन थी। उसने राहदारी में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दीवार पर लगा हुआ बटन दबा दिया और अंदर कहीं घंटी बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। वो गोपांग था। सुबह किए गए हुए अब लौटे हो, कहाँ मर गए थे? गोपांग के हलक से गुर्राहट से निकली और उसके साथ ही वो उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया था। खामस जवाब दिए बगैर अंदर दाखिल हो गया और उसके चेहरे के तासरा से गोपांग को सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए वसीओ अरीज ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम था। हर चीज़ कीमती और नफीस थी। रखेल शाह के पास हर शब कोई ना कोई औरत आती थी और इनमें से कुछ ऐसी थी जो मुस्तकिल आने वालों में शुमार होती थी। दीपाली भी ऐसी ही औरत थी। रखेल शाह को जब भी ज़रूरत होती उसे बुला लिया जाता, लेकिन एक नई लड़की के आ जाने से दीपाली को वापस भेज दिया गया था। रखेल शाह दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था और वह अजीब बेडौल और बदहैबत सा आदमी था। रात अगरचा आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन वह इस वक्त भी पैंट शर्ट में था और गले में टाई भी बंधी हुई थी। उसका कद 4.5 फुट से ज़्यादा नहीं था और उस पर सितम ये कि गर्दन भी ना होने के बराबर थी। यूँ लगता था जैसे सर को शानों पर टिका दिया गया हो। जिस्म बेहद भद्दा और चारों तरफ फैला हुआ था। तूंद मटके की तरह बाहर को निकली हुई, बाल बहुत से करीब से तराशे हुए, तंग सी पेशानी और बटनों जैसी छोटी छोटी आंखें जो उसकी मकार फितरत की अक्कासी करती थीं। वो लड़की कहाँ है? रखेल शाह ने खामस की तरफ देखते हुए पूछा। वो हमारे हाथ नहीं आ सकी सरकार, खामस ने मदम से लहजे में जवाब दिया। उसके साथ एक और औरत और एक मर्द भी था। वो तीनों फरार हो गए। क्या बक रहे हो? रखेल शाह के झटके से उठकर खड़ा हो गया। तुम जानते हो कि वो लड़की मेरे लिए कितनी अहम है और उसकी वजह से हवेली खाली कर दी गई। तुम पुलिस पार्टी को लेकर गए थे, लेकिन वो लड़की उसके साथी तुम लोगों को धोखा देकर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ खामस? मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो मामूली सी लड़की तुमसे ज़्यादा चालाक और ताकतवर है जो तुम्हारे हाथ नहीं आ सकी? ये सब कुछ पुलिस की वजह से हुआ है अपने सरकार, खामस ने कहा। और पुलिस वाले ऐन वक्त पर अड़ी कर गए थे। अगर वो बर वक्त मेरा साथ देते तो वो लोग कभी भी नहीं भाग सकते थे। पुलिस वालों का तो बंदोबस्त तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर उस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए तुम उस लड़की को तलाश करने में कामयाब ना हो सके तो चौधरी हुर्मत की तरह तुम्हारी लाश को भी कुत्ते चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे। रखेल शाह ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। 2 दिन बाद वो लड़की आपके कदमों में होगी सरकार, खामस ने कहा। जागीर के लोगों के लिए कहर बना हुआ ये शख्स इस वक्त रखेल शाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। 2 आदमी अपने साथ ले जाओ और जागीर का कोना कोना छान मारो, रखेल शाह ने कहा। और मुझे यकीन है कि वह किसी बस्ती में ही छुपी होगी। तलाश करो उसे और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से
नाकामी का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, और याद रखो ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। गोपांग और वो गोपांग की तरफ मतवज्जा हुआ। जी सरकार। और गोपांग भी एकदम सीधा हो गया। इसे साथ ले जाओ और लैंड क्रूज़र इसके हवाले कर दो। 2 आदमी भी इसे दे दो। और मैं इसके चेहरे पर थकन देख रहा हूँ, लेकिन इसकी सदा यही है कि ये इसी वक्त ज़रियाब और उसके साथियों की तलाश में रवाना हो जाए, और तुम भी अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश करो कि वह दूसरा आदमी और उसके साथ वो औरत कौन है। जी सरकार। गोपांग ने सर झुका दिया। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, रखेल शाह ने कहा, और उसके लहजे में रऊनत की झलक नुमायां थी। कामस ने पहले रखेल शाह और फिर सोफे पर बैठी हुई लड़की की तरफ देखा और मुड़कर गोपांग के साथ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। गोपांग और रखेल शाह उसके साथ इस किस्म का सलूक करते ही रहते थे, लेकिन उसने हमेशा फर्माबरदार गुलाम की तरह सर झुकाए रखा था। मगर आज उस खूबसूरत लड़की की मौजूदगी में उसने पहली मर्तबा अपनी तौहीन महसूस की थी। जंगल से निकलने के बाद घोड़ा सर पिट दौड़ने लगा। ज़रियाब ने किसी माहिर घुड़सवार की तरह घोड़े की लंगामें संभाल रखी थी। उसने एक लम्हे को भी घोड़े को बेकाबू नहीं होने दिया। कुंदन ने पीछे से उसे अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। जंगल का सिलसिला ख़त्म होने के बाद कुछ देर तक वो वीराने में सफ़र करती रहीं। फिर आगे शादाब खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। उन खेतों के बीच में बैलगाड़ियों और यकों की आमदोरफ़त के लिए रास्ता बना हुआ था, और घोड़ा उस रास्ते पर दौड़ रहा था। उस जगह ज़रियाब ने घोड़ा रोक लिया, और उसने अब तक कुंदन से रास्ते के बारे में दरियाफ़त नहीं किया था, लेकिन उस जगह पहुंचकर वह उलझ गई थी। कुंदन ने सीधी होकर इधर उधर देखा और फिर हाथ से बाईं तरफ इशारा कर दिया, उस तरफ, और वो रास्ता हमें खंडरों तक ले जाएगा। ज़रियाब ने एक बार फिर घोड़े को लगा दी। पसीने में भीगा हुआ घोड़ा फिर दौड़ने लगा। उस वक्त तकरीबन 11 बजे थे। धूप में खासी तपश थी। ज़रियाब और कुंदन भी पसीने में शराबूर थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो खंडर दिखाई देने लगे। तपती हुई धूप में यूं लग रहा था जैसे वहां कोई लाओ धक रहा हो। ज़रियाब ने घोड़े की रफ्तार हल्की कर दी और कुछ ही देर के बाद वो खंडरों के सामने पहुंच गई, लेकिन घोड़े को रोकने की बजाय वहां से खंडर वाले टाले पर लेटी चली गई। शिकस्ता खंडरों में मुख्तलिफ रास्तों पर घूमने के बाद उसने एक जगह घोड़ा रोक लिया और पहले खुद उतरी और फिर कुंदन को भी सहारा देकर नीचे उतार लिया। तुम यहाँ इस दीवार के साए में बैठ जाओ, मैं खुशनुमा को लेकर आती हूँ, ज़रियाब ने घोड़े की लगाम एक पत्थर से बांधते हुए कहा। और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कुंदन ने कहा। खंडरों के नीचे तय खाना बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम एक बार रास्ता भटक गई तो बाहर निकलने का रास्ता तलाश नहीं कर सकोगी, लेकिन तुम्हें चलने में तकलीफ होगी, ज़रियाब ने कहा। मैं तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खोना पसंद नहीं करूँगी। चलो, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़रियाब ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस खुफिया रास्ते के करीब पहुंच गईं। उस रास्ते में दाखिल होने के बाद उन्हें खुशनुमा तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। खुशनुमा उन्हें देखकर खुश हो गई, लेकिन फिर उसने फ़ौरन ही किसी गड़बड़ का अंदाज़ा लगा लिया। कुंदन के कपड़े खून आलूद थे। ज़रियाब ने उसे सहारा दे रखा था और वह लंगड़ा कर चल रही थी। क्या हुआ? और वह दौड़ कर कुंदन के करीब पहुँच गई। आपके कपड़ों पर खून? और कुछ नहीं, खुशनुमा। और कुंदन ने उसका हाथ थाम लिया। टांग में गोली लगी थी। अब तो मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम जल्दी से मेरी और अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटो, हम फौरी तौर पर यह जगह छोड़ रहे हैं। क्यों? और खुशनुमा ने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। भैया कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, और हम जहाँ जा रहे हैं वो भी वहाँ पहुँच जाएगा। देर मत करो, और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कुंदन ने कहा। खुशनुमा बारी बारी चंद लम्हे उनकी तरफ देखती रही, फिर तेजी से एक तरफ चली गई। तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, बहुत शिद्दत की प्यास लगी है। ज़रियाब ने कुंदन को पत्थर की एक सीट पर बिठा दिया और उस तरफ चली गई जहाँ पानी रखा हुआ था। उसने जग भरा और उसके साथ गिलास भी उठाकर ले आए, और पहले उसने कुंदन को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। तकरीबन 10 मिनट बाद खुशनुमा एक पोटली बगल में दबाए आ गई और उसने वाकई बड़ी फुर्ती दिखाई थी। चलिए, मैंने आपके और भैया के कपड़े समेट लिए हैं, दूसरी चीज़ें भी उस पोटली में हैं, मगर जाना कहाँ है? खुशनुमा ने कुंदन की तरफ देखते हुए पूछा। हमारे पास घोड़ा एक ही है और हमें तीनों उस पर नहीं बैठ सकती। तुम इस रास्ते से निकलकर बस्ती में राजू के घर पहुंच जाओ, हम भी वहीं आ रही हैं, कुंदन ने कहते हुए तय खाने में एक तरफ इशारा किया। जी बेहतर है, खुशनुमा कहते हुए मुखालिफ सिमत में दौड़ गई। ज़रियाब और कुंदन उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये 2-3 मशलें जल रही हैं, इन्हें बुझा दो और हम बाद में यहाँ आएंगे तो ये हमारे काम आएंगी। एक जलती मशल ले लो ताकि हम आसानी से रास्ता देख सकें। ज़रियाब ने दीवारों में लगी हुई तमाम मशलें बुझा दी।
ایک जलती हुई मशाल हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से कुंदन को सहारा दिया और उस तरफ चलने लगी जिस तरफ से आई थी। तहखाने के खुफिया रास्ते से निकलने से पहले ज़रियाब ने वो मशाल भी बुझाकर एक तरफ रख दी और वह दोनों बाहर आ गईं। कुंदन ने रास्ता इस तरह बंद कर दिया था कि किसी की नज़रों में न आ सके। बाहर आकर ज़रियाब ने कुंदन को घोड़े पर बिठाया और खुद भी सवार हो गई। उन्हें खंडरों के ऊपर से एक तवील चक्कर काटकर बस्ती की तरफ आना पड़ा था। जब बस्ती में राजू के घर पहुंची तो खुशनुमा पहले से वहां मौजूद थी। शायद वह दौड़ती हुई आई थी। ज़रियाब और कुंदन अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि चौधरी हरमत के घर वाले आ गए और एक दिन पहले ही तो खामस और गोपांग हुरमत चौधरी को पकड़ कर ले गए थे और वह दोनों हवेली में उसकी लाश को कुत्तों की खुराक बनते देख चुकी थी। हौसला करो आशिका, कुंदन हुरमत की बेवा के सर पर हाथ रखते हुए बोली। हुरमत अब हम में नहीं है और हम उसे कभी नहीं भूल सकेंगे। उसने अपनी जान व वफा पर कुर्बान कर दी। हमारी जानें भी हाजिर हैं आका दादी, आशिका ने रोते हुए कहा। मुझे तुम लोगों पर फख्र है, कुंदन ने कहा और सबको तसल्ली देने लगी। आधे घंटे बाद राजू यक्का तैयार कर चुका था। ज़रियाब, खुशनुमा और कुंदन सब से रुखसत होकर यक्के पर बैठ गईं। यक्का बस्ती से निकलकर फिरोजाबाद की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगा। फिरोजाबाद वहां से तकरीबन 15 कोस के फासले पर था। रास्ता कच्चा और नाहमवार होने की वजह से उन्हें वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। फिरोजाबाद एक बड़ा कस्बा था और यहाँ से दरवेशपुर और दूसरे शहरों को भी सड़कें निकलती थीं। ये कस्बा निमरान की जागीर ही में शामिल था, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग बाहर से आकर आबाद हुए थे। उनमें ज़्यादा तादाद कारोबारी और तजारत पेशा लोगों की थी और यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल भी थे। बुद्धी शाह मंडी में आड़ती का काम करता था और कई साल पहले वो भी जागीर का मुलाजम था, लेकिन फिर उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। कस्बे के नवाब में उसका मकान खासा वसी और अरीज था। बुद्धी शाह इस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब उसे मेहमानों की आमद की इत्तला भिजवाई गई तो वह फौरन ही आ गया। सबसे पहले उन लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया। फिर बुद्धी शाह के डॉक्टर को ले आया, जिसने कुंदन की टांग के जख्म की ड्रेसिंग कर दी और तसल्ली देता हुआ चला गया। और उसी शाम ज़रमक भी पहुंच गया। बुद्धी शाह जागीरदार निमरान का वफादार था और कुंदन 1-2 मरतबा पहले भी उसका मेहमान रह चुकी थी और इस मरतबा भी बुद्धी शाह ने उन्हें किसी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया था। वो 2 दिन यहाँ रहे और इस दौरान डॉक्टर बाकायदगी से आकर कुंदन को देखता रहा। वो कस्बे में उनकी आखिरी रात थी और उसी रात ज़रियाब, कुंदन और ज़रमक ने यह फैसला कर लिया था कि वह सुबह सवेरे दरवेशपुर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ नारखेल शाह के दफ्तर में मौजूद जागीरदार निमरान के एक हमदर्द बनजान नामी शख्स से यह मालूम किया जाएगा कि जागीरदार को कहाँ रखा गया है, बल्कि शेरान नामी शख्स को भी तलाश करने की कोशिश की जाएगी, जिसे जागीरदार निमरान ने अपने कागजात की फाइल दी थी। दरवेशपुर में अगरचे उनके लिए कई खतरात हो सकते थे, लेकिन खतरा मूल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। जरगोन जाने के लिए उन्हें दरवेशपुर ही से बस मिल सकती थी। बुद्धी शाह ने उन्हें सुबह सवेरे लारी अड्डे पर पहुंचा दिया और दरवेशपुर के लिए बस की रवानगी में चंद ही मिनट बाकी थे। उन्हें बहरहाल सीटें मिल गईं। खुशनुमा और ज़रियाब एक सीट पर बैठ गईं और कुंदन ज़रमक के साथ दूसरी सीट पर। दरवेशपुर का 6 घंटे का रास्ता था और ये तमाम सफ़र जागीर ही में था। बड़ा सरसब्दो शादाब इलाका था। ज़रियाब हैरत से सब कुछ देखती रही और उसे अफसोस भी हो रहा था कि इतनी बड़ी जागीर की मालक कुंदन कैसी कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रही थी। तकरीबन 3 घंटे के सफ़र के बाद बस रुक गई। सामने सड़क पर एक लैंड क्रूज़र खड़ी थी और वो 2 आदमी सड़क के वस्त में खड़े थे और उनके हाथों में राइफलें थीं। बस रुकते एक तीसरा आदमी भी लैंड क्रूज़र से उतर आया और वह तीसरे आदमी को देखकर ज़रियाब को सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो खामोश था। जिन 2 आदमियों ने बस रोकी थी उनके चेहरे बहुत ही खौफनाक थे। लंबे कद, बुलडॉग जैसी शक्लें और बड़ी बड़ी मूछें, और उन दोनों के पास जदीद तरीन ऑटोमेटिक राइफलें थी और उनके रुख बस की तरफ था। ज़रियाब ने कुंदन और ज़रमक की तरफ देखा और कुंदन के चेहरे पर हल्का सा खौफ था, लेकिन ज़रमक बिल्कुल पुरसकून नजर आ रहा था। ज़रियाब के साथ बैठी हुई खुशनुमा के चेहरे पर भी खौफ की झलक नुमाया थी। खामोश हम तीनों को नहीं पहचानता, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह जानता है। खुशनुमा ने ज़रियाब की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। ये चादर तुम ले लो और इसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारा चेहरा छुप जाए। उसे अपनी चादर कंधों से उतारकर ज़रियाब की तरफ बढ़ा दी। बस में 10-12 औरतें थीं और उनमें बाज़ ने पर्दे के ख्याल से चादरें इस तरह ओढ़ी हुई थी कि चेहरे छुप गए थे। ज़रियाब ने भी चादर इस तरह ओढ़ ली कि उसका चेहरा छुप गया। जब से जागीरदार बीमार हुआ है,
ڈاکوؤں نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان ڈاکوؤں سے جاگیر میں کہیں بھی سفر محفوظ نہیں رہا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی آواز دریاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ ڈاکو نہیں ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ وہ دیو کامت سفید بنیان والا گنجا خامس ہے، جاگیر کے مینیجر کا پالا ہوا گنڈا، اور یہ ارنے بھینسے کی طرح پوری جاگیر میں دندناتا پھرتا ہے۔ پولیس والے بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کیا جاگیردار کو اس کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں اور وہ اسے روکتا کیوں نہیں؟ پہلے آدمی نے کہا، اور وہ بیچارہ خود بے بس ہے۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا، سنا ہے کہ مینیجر نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ بیمار ہے، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ پچھلے 2 سال سے کسی نے جاگیردار کو نہیں دیکھا۔ ذرا بڑی توجہ سے ان کی باتیں سنتی رہی اور اس کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ جاگیر کے بہت سے لوگ جاگیردار کے خلاف اس کے مینیجر رکھیل شاہ کی سازش سے واقف تھے۔ ذریعہ اس گن مین کی طرف دیکھنے لگی جو ڈرائیور والے دروازے کی طرف آ گیا تھا اور ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا اور ڈرائیور نے انجن بند کر دیا اور چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا۔ دریاب نے گردن گھما کر خامس کی طرف دیکھنے لگی جو لینڈ کروزر کے اگلے حصے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رائفل اس کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ اس جیسے دیو کامت آدمی کے ہاتھ میں یہ رائفل کھلونا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ رائفل سنبھالے اگلے دروازے سے بس پر چڑھ گیا۔ دریاب نے ذرا سی گردن گھما کر کندن اور زرمک کی طرف دیکھا۔ زرمک اب بھی بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ گن مین کی طرف دیکھنے لگی جو گھورتی ہوئی نظروں سے بس کے مسافروں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں بھی زیادہ تر عورتوں کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ 4-5 عورتوں نے چادریں اس طرح اوڑھ رکھی تھیں کہ چہرے بھی چھپ گئے تھے اور وہ شخص چند لمحے اپنی جگہ کھڑا رہا اور اس کے چہرے پر بے حد صفاقی نظر آ رہی تھی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا سیٹوں کے درمیان والی جگہ پر چلنے لگا اور بس کے تقریباً درمیان میں رک گیا۔ اس کی دائیں والی سیٹ پر ایک عورت اور ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ مرد کی عمر 30-32 کے لگ بھگ لگی ہوگی۔ اس نے نیوی بلو پینٹ اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ صحت مند قسم کا آدمی تھا۔ عورت کھڑکی والی کی طرف تھی اور اس نے چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اس کی ایک آنکھ کے علاوہ باقی چہرہ چھپ گیا تھا۔ گن مین سیٹ کے قریب رکا تو اس عورت نے کسمکسا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی اور گن مین چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اچانک ہی بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر نوچ لی۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس کا چہرہ خوف سے ایک دم پیلا ہو گیا تھا اور وہ 22-23 سال کی خوبصورت عورت تھی۔ اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مرد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ہاتھ قابو میں رکھو، اور تم نے چادر کیوں کھینچی میری بیوی کے سر پر سے؟ اور اس کے حلق سے گھراہٹ سے نکلی اور وہ غصیلی نگاہوں سے گن مین کو گھور رہا تھا۔ گن مین نے کھوڑ کھپا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اچانک کی رائفل کا بٹ زور کے اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ آدمی چیختا ہوا لڑکھڑا کر سیٹ پر گرا اور ضرب کافی زوردار تھی۔ اس کا اوپر کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور منہ سے خون بہہ نکلا تھا اور جو اس کی تھوڑی تر کرتا ہوا قمیض پر ٹپک رہا تھا۔ کسی اور نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو اسے گولی سے اڑا دوں گا، گن مین دھاڑا، اور سب لوگ اپنی جگہوں پر دبک کر بیٹھے رہے۔ وہ بدماش اگر خالی ہاتھ ہوتا تو شاید بس کے لوگ سب اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے بکیے ادھیڑ ڈالتے، لیکن اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ 2 اور آدمی رائفلیں لیے باہر کھڑے تھے۔ ایسی صورت میں کون ان کے منہ لگنے کی جرأت کر سکتا تھا؟ اپنا ایک دانت توڑوانے کے بعد وہ شخص بھی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ گن مین کچھ دیر تک اس عورت کی طرف دیکھتا رہا اور جس کی اس نے چادر نوچی تھی، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا اور دریاب والی سیٹ کے قریب رک گیا اور خوش نما کھڑکی کی طرف بیٹھی ہوئی تھی اور دریاب اندر کی طرف۔ ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک اور عورت اور مرد بیٹھا ہوا تھا اور اس عورت نے بھی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ گن مین بڑی خونخوار نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کا ساتھی مضطرب ہو کر سیٹ پر پہلو بدلنے لگا اور پھر گن مین نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دریاب ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو، اور اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی۔ اس طرح بے غیرت بن کر ان عورتوں کے سروں سے چادریں مت نوچو، اور جس کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہوں۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ اوہو، اور گن مین نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ اور وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں دریاب ہوں جس کی تم لوگوں کو تلاش ہے، دریاب نے دبنگ لہجے میں جواب دیا، اور میں ہی سندس محل سے بھاگی تھی۔ خامس کو میری ہی تلاش ہے اور وہ ذلیل باہر کھڑا ہے، اسے بلاؤ تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ بس کے سارے ہی مسافر حیران تھے کہ کہیں اس لڑکی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اپنے آپ کو اس طرح موت کے حوالے کر رہی ہے۔
कुंदन और खुशनुमा भी दरियाब की इस हरकत पर हैरान हो गई थीं, मगर जरमक के चेहरे पर अब भी सुकून था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। उसके साथ बैठी हुई कुंदन ने अपनी जगह से हरकत करना चाही, मगर जरमक ने उसका हाथ दबा दिया। कुंदन कसमसा कर रह गई। गनमैन कुछ देर तक दरियाब की तरफ देखता रहा और फिर उसके होंठों पर मकरूर सी मुस्कुराहट आ गई। यकीन नहीं आता कि तुम दरियाब हो। और वह मैंने खेद अंदाज में बोला, खामस ऐसा तो नहीं कि तुम जैसी हसीन और दान पान सी औरत से नीचा कर रख दे, और उससे तो शैतान भी पनाह मांगता है। तो उस शैतान को बुलाओ ताकि वह मुझे पहचान ले, दरियाब ने जवाब दिया, और उसके लहजे में खौफ की जरा भी झलक नहीं थी। और तुम भी मुझे पहचान लो ताकि बाद में कभी आमना सामना हो तो तुम जान सको कि तुम्हारी गर्दन मरोड़ने वाली कौन है। बल्ले भई वाह। और उस शख्स ने हल्का सा कहका लगाया। अब तुम जैसी छोकरियां भी बदरी को गर्दन मोड़ने की धमकियां देने लगी। कोई सूरमा तो आज तक बदरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका, और तुम। उसने एक और कहका लगाया और फिर खिड़की की तरफ झुकते हुए खामस को आवाज दी, खामस इधर आकर देखो, और ये छोकरी कह रही है कि मैं दरियाब हूँ, आओ देखो कि ये कौन है। बस के मुसाफिर बेहद खौफजदा थे, और उनमें से बात तो ऐसे भी थे जो होले होले कांप रहे थे, और उनके ख्याल में ये लड़की वाकई बदकिस्मत थी जो जानबूझकर मौत के मुंह में छलांग लगा रही थी। बेशतर लोग खामस के बारे में जानते थे, जिन्होंने उसे नहीं देखा था वो भी उसकी दहशत गर्दियों से वाकिफ थे।